will discuss about that beta oxidation. Okay, this is a very important process for that biosynthesis of that fatty acid. Okay, this is a one type of that lipid metabolism. Okay, so that focusing on that, first of all, the lipids. There are two types of lipids we know about that are simple lipids and then complex lipid. Okay, here one is that the lipids are that the made up on, we know about that lipids made up by that fatty acid and glycerol. Okay, here one is that is, if we are talking about the simple lipids, that are two. One is that triglyceraldehyde and wax. Okay, here one is that if we are talking about that complex lipid, again the complex lipid, if it is made up by that glycerol and two fatty acid and one nitrogen base. Okay, we know about the complex lipid. Okay, the complex lipid structure also contains that glycerol and the fatty acids. Okay, तो फैटी एसिड तो सब में ही आता है. तो अब फैटी एसिड का अंडरगोज, जब भी लिपिड्स का क्या होगा, लाइपेज एंजाइम थ्रू डाइजेशन होगा, तब जो फैटी एसिड हमें मिलेगा, तो फैटी एसिड कहाँ पर जाएगा, तो फैटी एसिड्स undergoes that beta oxidation, right? That beta oxidation, it is very required for that fatty acid other than ऑक्सीडेशन. ओके, फैटी एसिड का अगेन ऑक्सीडेशन करवाने में ये बीटा ऑक्सीडेशन क्या करता है, हेल्प करता है. ओके, दिस इज अ होल प्रोसेस ऑफ दैट वाई इट इज़ रिक्वायर. हम बीटा ऑक्सीडेशन क्यों होता है हमारे शरीर में, उसकी हमने इंफॉर्मेशन देख ली कि जब भी लिपिड्स का डाइजेशन होगा तब क्या होगा, तो फैटी एसिड फॉर्म होगा. ओके, दिस इज होल अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ ओवरव्यू ऑफ दैट बीटा ऑक्सीडेशन, वाई इट इज़ रिक्वायर एंड क्यों हमारे शरीर में ये होता है. ओके, we already taking the idea about that beta oxidation, why it is carried out. Okay, and here one is that this is overview of that beta oxidation. Okay, see, this is one that focus on that the beta oxidation means what. The beta oxidation is a contain that lipid metabolism. Okay, here one is that focus on this word beta oxidation, that beta oxidation that indicates that oxidation of that beta carbon of that fatty acid, right? तो फैटी एसिड का जो भी बीटा कार्बन है उसका यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होने वाला है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन. ओके, तो बीटा ऑक्सीडेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये क्वेश्चन होना चाहिए कि बीटा ऑक्सीडेशन में कौन फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्टिसिपेट आर दैट the participated of that here one is that fatty acid. we know about that जब भी लिपिड्स का डाइजेशन होगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या होंगे, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट के तौर पर हमें यहाँ पर मिलते हैं. तो वी नो अबाउट द फैटी एसिड स्ट्रक्चर. ओके, दिस इज अ फैटी एसिड स्ट्रक्चर. यू कैन सी दिस हियर, दिस डायग्राम ऑफ दैट द फैटी एसिड स्ट्रक्चर, राइट. यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि फैटी एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है, उसमें क्या होता है, तो उसमें ये आपको दिख रहा होगा कि COOH ग्रुप होता है, यानी कि एसिडिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और अदर वन इज दैट CH3 ग्रुप. ओके, दिस इज अ डायग्राम ऑफ दैट फैटी एसिड. ये हमें रिकॉल हो गया. ओके, देन आफ्टर दैट द क्वेश्चन सेकंड इज दैट where it is formed, where it is beta oxidation that are carried out. It is very important process and very important question. Okay, the beta oxidation, it is a very essential process, and it requires that various types of enzymes, so that beta oxidation that carried out into that mitochondrial matrix. Okay, तो ये कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है. ओके, because the mitochondrial matrix having various types of enzymes for beta oxidation. Okay, then third question is that in our mind why it is required. Okay, हमने ये देख लिया कि बीटा ऑक्सीडेशन क्यों होता है और कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है. तो हमने देख लिया कि फैटी एसिड यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, बट वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होना क्यों ज़रूरी है. तो बीटा ऑक्सीडेशन यहाँ पर इसलिए होता है कि दिस द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दैट बीटा ऑक्सीडेशन, इट इज़ दैट एसिटाइल को ए.
acetyl CoA, we know about that acetyl CoA. Okay, this is a intermediate product of that EMP और TCA, यानी कि ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल की ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसलिए उसका जनरेट होता है. और वी नो अबाउट द एसिटाइल कोए that transfer into that TCA cycle and produce that 12 ATP. ओके, ये उसका क्या है, बेनिफिट है हमारे लिए कि ये 12 ATP जनरेट करता है. ओके, तो एसिटाइल कोए ये बीटा ऑक्सीडेशन की क्या है, लास्ट प्रोडक्ट है. और ये लास्ट प्रोडक्ट बहुत ही बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में क्या पैदा करती है, ATP जनरेट करती है. ओके, सो इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड. ओके, and then first of all, this is the first criteria, and the second criteria is that we are talking about that beta oxidation that carried out various types of molecules. Here one is that NADH2 or FADH2 is a one type of that energy generating molecules that are also forming this beta oxidation. Okay, आपको जब आप मेरे साथ लर्न करेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन में ये क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन टाइप की वन टाइप ऑफ प्रोसेस होती है, उसमें NADH2 और FADH2 जनरेट होते हैं. वी नो अबाउट दैट NADH2. द NADH2 द कैरीज दैट 3 ATP. It is a full form is that reduced nicotinamide adenine dinucleotide, and the FADH2 full form is that reduced flavin adenine dinucleotide. Okay, दिस इज़ अ होल अबाउट दैट बीटा ऑक्सीडेशन. ओके, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. ओके, हियर वन इज़ दैट द बीटा ऑक्सीडेशन इट इज़ अ 5 स्टेप प्रोसेस. ओके, हियर वन इज़ दैट बीटा ऑक्सीडेशन में क्या क्या 5 स्टेप प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एक्टिवेशन, द एक्टिवेशन ऑफ दैट फैटी एसिड. ओके, किसी भी चीज़ के लिए एक्टिवेट होना फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही ज़रूरी है. ओके, सेकंड थिंग इज़ दैट ऑक्सीडेशन, and the third one is that hydration, fourth one is that again oxidation, and the fifth one is that thiolysis. तो इस टाइप की प्रोसेस हमें बीटा ऑक्सीडेशन में दिखने को मिलेगी. दिस इज़ अ होल अबाउट द आइडिया एंड ओवरव्यू ऑफ दैट बीटा ऑक्सीडेशन. ये आपको जानना, अगर आप ये जान गए होंगे तो आपको आगे बीटा ऑक्सीडेशन जानने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी. ओके, देन अगेन फोकस ऑन दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड ऑफ दैट बीटा ऑक्सीडेशन. See, this one is that diagram of that beta oxidation. Okay, here one is that beta oxidation, it is a one type of the process of that which is carried out into that mitochondrial matrix. We know about that. Okay, here one is that first of all we know about that beta oxidation that are 5 step process. Okay, here one is that the first one is that activation activation stage. ओके, यहाँ पर क्या होता है, एक्टिवेशन होता है. किसका एक्टिवेशन होता है, तो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का. ओके, किससे होता है, तो द फर्स्ट ऑफ ऑल द थायोकाइनेज एंजाइम दैट एंड आल्सो कॉल्ड एज अ कोएंजाइम ASH दैट ATP इट इज़ कन्वर्टेड टू दैट AMP प्लस PPI, यानी कि ATP का यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा और बनेगा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. ओके, ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेप प्रोसेस. कि फर्स्ट स्टेप प्रोसेस में क्या होगा, तो जो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है वो किस में कन्वर्ट होगी, फैटी एसिड कोए. फैटी एसिड कोए यहाँ पर बनेगा. देन आफ्टर देयर एक्टिवेशन, ये एक्टिवेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो साइटोसॉल में होता है. ये हमें याद रखना है. ओके, जस्ट अ मिनट. सी, दिस इज़ वन दैट ये होता है साइटोसॉल में. ओके, और जब एक्टिवेटेड जो लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड है उसे कहाँ पर आना होगा, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आना होगा. ओके, बट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने से पहले हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ वन टाइप ऑफ दैट ऑर्गेनल दैट कंटेन्स दैट इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन. ओके, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. और उससे क्या होगा कि जो यहाँ पर जो इनर स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ओके, उसके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में वन टाइप ऑफ दैट यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसपोर्टर होगा. फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करवाने में ये हेल्प करता है. कौन, कार्निटीन शटल. ओके, तो कार्निटीन शटल इट इज़ अ रिमेंबर दिस नेम ऑल्सो, प्लीज़ राइट डाउन दिस नेम. द कार्निटीन शटल
it is essential for that transportation of that long chain of that fatty acid into that mitochondrial matrix. ओके, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लाने का काम कौन करता है? तो कार्निटीन शटल. ओके, हियर वन इज दैट, अब क्या होगा है, तो जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड को है वो कार्निटीन शटल के थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गया है. ओके, देन आफ्टर दैट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने के बाद उसकी ज़्यादातर प्रोसेस क्या होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो मेन प्रोसेस है वो शुरू होती है कि सेकंड वन इज़ दैट एक्टिवेशन हो गया. अब क्या होगा? याद करो, ऑक्सीडेशन. ओके, यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन और ऑल्सो कोड एज अ डीहाइड्रोजिनेशन. वी नो अबाउट दैट ऑक्सीडेशन डेफिनेशन. ओके, ऑक्सीडेशन को हम डीहाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं. ओके, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कह सको. यहाँ पर क्या होता है, तो जो बीटा कार्बन है और अल्फा कार्बन है उसमें से वन हाइड्रोजन क्या होते हैं? रिमूव होते हैं. और देन आफ्टर दैट रिमूविंग द हाइड्रोजन दैट फॉर्म्स दैट unsaturated fatty acid, it is called that acyl CoA. Again that acyl CoA that are formed, but it is one type of that unsaturated, because यहाँ पर क्या होगा? अल्फा और बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ओके, देन आफ्टर दैट डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस, मैंने आपको कहा था कि डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस थ्रू और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस थ्रू हमें क्या मिलता है? तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस थ्रू हमें मिलता है कि FADH2 जनरेट होता है. वी नो अबाउट दैट FADH2 दैट हमें क्या देता है? FADH2 2 ATP हमें देता है. ओके, दिस इज a 2 ATP दैट जनरेट इनटू दैट by that help of beta oxidation and that as a oxidation process. Okay, here one is that after that beta oxidation यहाँ पर क्या होगा? तो डबल बॉन्ड यहाँ पर हमें प्रेजेंट होगा. देन आफ्टर द डीहाइड्रोजनेशन ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस. द थर्ड वन इज दैट हाइड्रेशन प्रोसेस दैट आर अकर. यहाँ पर क्या होती है? हाइड्रेशन प्रोसेस होती है. मीन्स दैट यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो फैटी एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें ऐड होता है. तो वी नो अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स दैट 2 मॉलिक्यूल्स H+ और OH-. ओके, जो H+ होगा वो कहाँ पर जाएगा? तो H+ है वो जाएगा अल्फा कार्बन पर, और जो OH- है वो जाएगा बीटा कार्बन पर, और बनाएगा क्या? बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल CoA. ओके, the beta hydroxy acyl CoA that are formed by the help of enol CoA hydrolase enzyme. यहाँ पर आपको जो नाम दिख रहे हैं जो एंजाइम्स के वो बहुत ही ज़्यादा तौर पर आपको याद रखने होंगे. ओके, इनोल कोए हाइड्रेटेज एंजाइम थ्रू बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए यहाँ पर जनरेट होता है. ओके, एंड आफ्टर दैट बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए जनरेट होने के बाद क्या होता है? देन आफ्टर दैट फोर्थ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी कि फोर्थ प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन की. ओके, हियर वन इज दैट ऑक्सीडेशन प्रोसेस. देन अगेन दैट nicotinamide adenine dinucleotide phosphate that are generated in this process and that carries that 3 ATP. ओके, यहाँ पर क्या होगा है कि बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया है. अगेन यहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन होगा, यानी कि डीहाइड्रोजनेशन होने के कारण क्या होगा? तो इसमें से भी एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, और जो अल्फा कार्बन है उसमें से भी एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव होता है. और देन अगेन दैट फॉर्म दैट बीटा कीटो एसाइल CoA. बीटा कीटो एसाइल CoA यहाँ पर क्या होता है? जनरेट होता है. ओके, दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट of that beta keto acyl CoA. ओके, देन आफ्टर दैट बीटा कीटो एसाइल CoA होने के बाद क्या होता है? द फिफ्थ स्टेप इज दैट बाय द हेल्प ऑफ एसाइल CoA एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू क्या होता है? तो थायोलिसिस यहाँ पर होगा. थायोलिसिस यानी कि यहाँ पर क्लीवेज होता है. किसका क्लीवेज होगा? तो आंसर इज दैट अल्फा और बीटा कार्बन आपको दिख रहे होंगे ना, तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में से बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, तो उसे हम कहेंगे क्लीवेज. ओके, क्लीवेज होगा यहाँ पर. और दो टाइप्स की यहाँ पर प्रोडक्ट जनरेट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल द फैटी एसाइल CoA, और सेकंड वन इज दैट एसिटाइल CoA. ओके, आपको यह याद रखना है कि
कोएंजाइम एसिड जो है ना वो हमें सेपरेट आउट अल्फा कार्बन को भी देने हैं और बीटा कार्बन को भी देने हैं. ओके, देन आफ्टर दैट फॉर्म्स दैट एसिटाइल कोए एंड वी नो अबाउट दैट एसिटाइल कोए दैट ट्रांसफर इनटू दैट क्रेब्स साइकिल. ओके, द क्रेब्स साइकिल में वो चला जाता है. ओके, दिस इज होल अबाउट दैट आइडिया ऑफ दैट बीटा ऑक्सीडेशन. ओके, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है. ओके, and then after we know about that first of all the why it is required, why it is, where it is carried out. Okay, this is whole about the idea of beta oxidation. This is a 5-step process: activation, dehydrogenation, hydration, again dehydrogenation, and then cleavage. Okay, this is whole about that beta oxidation. I hope like this video. Please like and subscribe my channel. Thank you.